فرانس کے مغربی صوبے برطانیہ کے اٹلانٹک کوسٹ سے آپ کو فرحان بابر وڑائچ کا سلام پہنچ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اسٹڈی ان فرانس۔ اسٹڈی ان فرانس کے فوائد پر، اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز پر، اور اس کے پوسٹ ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس کے فوائد پر، اور فرانس میں ہی تعلیم UK، امریکہ یا کینیڈا سے ہم لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے کیوں بہتر ہیں۔ فرانس میں تعلیم حاصل کرنے کے جو ہم لوور مڈل کلاس والوں کے لیے فوائد ہے، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ فرانس کے اندر تعلیم UK، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا کی نسبت کئی گنا سستی ہے۔ فرانس کے اندر سوشل سائنسز اور بزنس ایڈمنسٹریشنز کی بیچلر ڈگری آپ اچھی سرکاری یونیورسٹی سے 170-180 یورو سالانہ کی فیس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ سوشل سائنسز اور بزنس ایڈمنسٹریشن کی ماسٹر کی ڈگری آپ زیادہ سے زیادہ 400 یورو سالانہ کی فیس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹیز میں سے 46 یونیورسٹیز صرف فرانس کے اندر ہیں، جبکہ فرانس کی سب سے پرانی اور قدیم یونیورسٹی سوربونہ یونیورسٹی کا سالانہ بجٹ 1 بلین یورو ہے، مطلب پاکستانی قریب 300 ارب روپے کے۔ فرانس کے اندر یونیورسٹی ایجوکیشن کے جن فوائد میں سے ایک فوائد ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں پر آئیلٹس بہت سے چارٹرڈ انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کے اندر یا بزنس سکولز کے اندر لازم نہیں ہے۔ آپ یہاں پر بغیر آئیلٹس کے انگلش میں اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سے اہم ترین جو سکولز ہیں وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آئیں گے۔ چند ایک کے نام میں بتا دیتا ہوں: EBS پیرس، امریکن بزنس اسکول پیرس، EPETA گریجویٹ اسکول آف کمپیوٹر سائنسز، ESC اسکول آف بزنس غین، تولوز بزنس اسکول، باقی آپ کو سکرین پر نظر آ جائیں گے۔ مزید آپ کو آگے ہم معلومات دیں گے کہ آپ کہاں پہ کس سائٹ سے آپ ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ فرانس کے اندر جو بینک سٹیٹمنٹ، اگر آپ اپنی اسٹڈی کے حوالے سے بینک سٹیٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی بینک سٹیٹمنٹ ہو تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے، تو وہ اس کا کرائٹیریا اس طرح کہ یہاں پر اگر آپ منتھلی پیرس ایریا میں رہتے ہیں، جو پیرس کے مضافات ہیں، تو وہاں پر جو ماہانہ خرچہ وہ تقریباً گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے تقریباً 715-20 یورو کاؤنٹ کرتی ہے منتھلی، جس میں ٹرانسپورٹیشن، آپ کی رہائش، آپ کا فوڈ ایکسپینس، آپ کا خوراک کا خرچہ، رہائش کا اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس حساب سے۔ اور اگر آپ پیرس سے باہر آؤٹ آف پیرس دوسرے سٹیز میں جیسے تولوز ہے، لیل ہے، نانت ہے، غین ہے، بوردو ہے، نیس ہے، مارسی ہے، لیون ہے، اسٹراسبرگ ہے، مطلب ایسے سٹیز جو پیرس کے علاوہ ہیں، اس کے بڑے شہر، وہاں پر ماہانہ خرچ تقریباً 600 سے 620 یورو 15 یورو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ بینک سٹیٹمنٹ دیں گے وہاں پہ فرینچ ایمبیسی میں، تو وہ آپ 12 ماہ اس حساب سے کاؤنٹ کریں گے۔ اگر آپ کی ڈگری آپ بیچلرز کے لیے آ رہے ہیں، بیچلرز کی آپ کی فیس 200 یورو ہے، تو آپ پیرس ایریا میں آپ کی یونیورسٹی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے راؤنڈ اباؤٹ 8600 700
के लगभग तकरीबन 8,500 यूरो आप उसको बैंक स्टेटमेंट को आपकी होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी रुपीज़ में इस वक्त फरवरी 2023 के हिसाब से जो मौजूदा रेट है, इस वक्त रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, हमारे रुपये की बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो इस वक्त वो तकरीबन रफली 24-25 लाख के राउंड अबाउट बनता है, 23 से 25 के राउंड अबाउट रेट के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता है। अगर यही आप बैचलर डिग्री आउट ऑफ पेरिस दूसरे किसी सिटी से, बगदो से, नांस से, लिल से, लियोन से हासिल करते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन है, तो वहाँ पे आपको ये बैंक स्टेटमेंट 20 से 21 लाख रुपए की आपने प्रोड्यूस करनी है, आपने फ्रेंच एम्बेसी में देनी है। वो आपके गार्डियन की हो सकती है, आपके वालिदैन में से किसी की हो सकती है, भाई में से किसी की हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है। उसके बाद अगर आप इसमें आते हैं इंजीनियरिंग के शोबा के अंदर, इंजीनियरिंग के शोबा के अंदर क्योंकि फ़्रांस में फ़ीस तकरीबन मुख्तलिफ है। बैचलर के अंदर आपकी सालाना फ़ीस 1500 यूरो से लेकर 1700-1800 यूरो तक है। मास्टर्स के अंदर आपकी इंजीनियरिंग के अंदर फ़ीस जो है वो 2500 से 3500-3800 यूरो तक है। ये आपकी डिग्रीज पे डिपेंड करता है। अगर आप आईटी के या ईया के अंदर आप अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी फ़ीस हाई है, लेकिन यही एवरेज मास्टर डिग्री की फ़ीस मैक्सिमम 3800 यूरो तक ही सारे फ्रांस में है। इससे कम ही आपको मास्टर डिग्री के लिए फ़ीस पे करना पड़ेगी, और ग्रेजुएशन के लिए आपको 2000 यूरो से कम इंजीनियरिंग के किसी शोबा के अंदर फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो आप अगर पेरिस एरिया में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप चले काउंट कर लें कि आपकी जो फ़ीस है वो 3500 यूरो है, और आपका एक्सपेंडिचर जो है सालाना रिहाइश का, खाने पीने का, ट्रांसपोर्ट का, वो तकरीबन 8,500 यूरोज़ बन रहा है। तो आपको 12,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 32-33 या 34 लाख रुपए इस वक्त के हिसाब से बनती है। इसी तरह आप ग्रेजुएशन पेरिस में करना चाहते हैं, तो आप यही काउंट कर लें इंजीनियरिंग के अंदर कि आपको 27-28 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगी। आप पेरिस से बाहर किसी एरिया में एडमिशन हासिल करते हैं, तो वहाँ पे आपकी मास्टर्स के लिए 28-29 लाख की हो जाएगी, और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आते हैं तो 25 लाख के राउंड अबाउट हो जाएगी इंजीनियरिंग के लिए। सोशल साइंसेज और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, उसी में आपकी पॉलिटिकल साइंस भी सोशल साइंसेज में आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी भी उसी में आ जाती है, हिस्ट्री के हवाले से आप उसी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ लैंग्वेज कोर्सेज आप या फ्रेंच लैंग्वेज में या फ्रेंच लिटरेचर में आप आ रहे हैं, तो वो भी इसी जो सोशल साइंसेज वाली फ़ीस के में ही काउंट होगा, वही फ़ीस लागू होगी। अब इससे आगे हम आ जाते हैं कि पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको 20 घंटे मिलेंगे पार्ट टाइम जॉब करने के। उसमें अब ये है कि सबसे बड़ा जो हर्डल्स हम पाकिस्तानियों के लिए आता है कि हम क्योंकि फ्रेंच स्पीकर नहीं है, हम इंग्लिश में हमारी एजुकेशन होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम एंग्लोफोन हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपको मुश्किल आएगी, फेस करेंगे इब्तदा में, वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज के मसाइल आएंगे। अब फ्रेंच लैंग्वेज के मसाइल आप कैसे हल कर सकते हैं? अगर आपने तहिया कर लिया है कि आपने फ्रांस ही आना है, क्योंकि फ्रांस एक अच्छी ऑप्शन है, कम खर्च एजुकेशन है। फीसिस यूके में जहाँ पे 8-10 हज़ार पाउंड फीस है, वहाँ पे यहाँ आप 500 यूरो या 1000 यूरो के अंदर 10 गुना कम फीस में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो आपने अगर फैसला कर लिया कि फ्रांस आना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे इस्लामाबाद में नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ऐसे किसी अच्छे इदारे से आप 2 से 3 माह का फ्रेंच लैंग्वेज में, बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज में कोर्स कर लें। उससे आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब रही बात इसके बाद कि अगर हम स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ्रांस में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए फंड मुहैया किए जाते हैं। उसके लिए आप स्कॉलरशिप के हवाले से आप इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है campusfrance.org,
सॉरी, ये जस्ट लाइक ब्रिटिश कौंसिल की तरह गवर्नमेंट की, इनकी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की ये वेबसाइट है। इस पे आप स्कॉलरशिप के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस पर आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स डेट्स, एडमिशन्स और उनकी फीसिस, उनकी कास्ट, सब की आपको मालूमात मिल सकती है। बाकी जितनी भी स्कॉलरशिप्स के हवाले से या मालूमात के हवाले से वेबसाइट्स हैं, उनके लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से क्लिक करें, आपको वहां पे और भी इसके अलावा भी वेबसाइट्स हैं जहां से आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। वो लिंक्स आप क्लिक करें, आपको मालूमात मिलेंगी। आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है, 50% फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है, 25% स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी पोस्ट स्टडी रिकॉर्ड्स पर और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के हवाले से। इसके बाद आप डिग्री मुकम्मल होने के बाद अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स मुकम्मल कर लेते हो फ्रांस के अंदर, तो आपको 2 साल का आर्जी रेजिडेंस कार्ड दिया जाएगा, जिसको वो कहते हैं titre de séjour recherche d'emploi। इसका मतलब है कि आपको 2 साल का जो कार्ड दिया जाएगा, इसमें आपने अपनी जॉब ढूंढनी है अपने प्रोफेशन के हिसाब से, और फिर आपको उस हिसाब से आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। आपको काहदी तालत मिलता है या काहदी स्लैख मिलता है, वो आप डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की जॉब है। एक चीज़ बताता जाऊँ कि फ्रांस के अंदर आप अगर जब भी 2 साल की एजुकेशन मुकम्मल कर लेंगे, जहाँ पर आपका वर्क परमिट के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाएंगे। ये एक फ्रेंच लॉ है। अब फ्रांस के अंदर कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं? इसमें से आईटी का सेक्टर जैसे कि सारी दुनिया में टॉप पे, इसीलिए फ्रांस में बहुत ज़्यादा है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिसिन में, डॉक्टर्स, नर्सिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और इसके बाद एविएशन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप को जब पोस्ट आपकी डिग्री आप अप्लाई करेंगे काहदी séjour recherche d'emploi, तो उस 2 साल के दौरान आप बहुत जल्द अपने मुतलका शोबे के अंदर ये जो मैंने बताया, इस हवाले से आपको जॉब्स मिल सकती हैं, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है इन जॉब्स की। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बहुत बड़ी एक यहाँ पे जॉब मार्केट है। सिविल इंजीनियरिंग में, बिल्डिंग के शोबे में यहाँ पर बहुत बड़ा जॉब सेक्टर है। ग्रीन एनर्जी में, स्पेशली ग्रीन एनर्जी के हवाले से इनका गवर्नमेंट का फंड कायम हुआ हुआ है, उस पर रिसर्च के हवाले से, जिसमें विंड्स है, जिसमें सोलर पैनल्स हैं, जिसमें ओशन से बिजली पैदा करने के रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर इस वक्त मौजूदा यूके के साथ अगर आप फ्रांस को कंपेयर करते हैं, तो यूके में अगर आप आज बैंक स्टेटमेंट आपकी मौजूदा जो पॉन्ड्स रेट है उस हिसाब से 70 से 80 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट हो, तो आप वहाँ पर इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जबकि फ्रांस में आप उसके अगेंस्ट 20-22 लाख या 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की या सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। मज़ीद हम मालूमात के हवाले से, फ्रांस में स्किल्ड वीज़ाज़ के हवाले से, इसके अलावा स्टडी इन यूरोप के हवाले से व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको देंगे बेहतर से बेहतर मालूमात जिससे आपको फ़ायदा हो। शुक्रिया आपको। फरहान बाबर वड़ैच का फ्रांस से सलाम, और आपके फ्यूचर के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जिसकी जो नीयत है उसमें उसको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया।